आयुष्मान, राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। मेरा सवाल ये था कि सबसे पहले तो 11:25 पे मैंने शांडिल्य जी का पोस्ट देखा। पोस्ट में एक लड़की कार पे खड़ी थी, मैं अचानक देख के मेरी आंखें सन रह गई। कुछ देर के फिर मैंने आंख पे पानी मारी, फिर जूम करके देखा आप निकले हो। यार ये जूम करके क्यों देखते हैं लड़के लड़की? मैं पूछना चाहता हूँ क्यों नियति खराब है। ये क्यों डीपी देख रहे हो जूम करके हमें? सीरियसली आप अनन्या पांडे हो या सारा अली खान हो या कियारा, सबको टफ कंपटीशन दे रहे हैं। क्या आपको सिर्फ एक्टर की फीस मिली कि हीरोइन का भी चार्ज मार दिया आपने एकता जी से? देखो एकता जी बहुत ही स्मार्ट प्रोड्यूसर है, उन्होंने हीरो और हीरोइन की दोनों की फीस एक से ही करवा ली है। और इस बार मैं चाहता हूँ मुझे बेस्ट एक्ट्रेस में नॉमिनेशन मिले। यही मेरा एक अंदर से एक एस्पिरेशन है, ड्रीम गर्ल का। बिल्कुल। शांडिल्य जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं तो पूछना चाह रहा था कितना जूम किया। जहाँ तक हो सकता था। अरे भाई मैं वही तो पूछ रहा हूँ कितना जूम। इतना जुल्म, सॉरी इतना जूम मत करो। नजदीक के बढ़ा रहे किया तो जुल्म नहीं किया। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हेलो कल्पेश कुमार फ्रॉम महाराष्ट्र। मैं पूछना चाहता था कि कौन सा सीन एक था जो आपको डिफिकल्ट लगा बहुत करते हो? यार ये पूरी की पूरी फिल्म ही बहुत डिफिकल्ट थी। मथुरा में 45 डिग्री सेल्सियस में हम शूट कर रहे थे। बाकी लोग तो नॉर्मल शूट कर रहे थे, मैंने विग पहनी हुई थी, साथ में सेम्बर जैसे मैं था। Hello, now you understand what heroines go through. Of course, but I was the one who was assembled, right? Yeah, total respect. I think ये फिल्म करने के बाद औरतों के प्रति और रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है। मतलब एक एम्पैथी होती है, वो और जाग चुकी है। और मुझे लगता है हर एक लड़के को कोशिश करनी चाहिए एक बार, कभी ना कभी उनके शूज में कदम रखकर जानने की क्या क्या बीतती है औरत पर। माइक हियर प्लीज। माइक दे दो यार इधर। Hello everyone, Surbhi here from Midday. First of all, congratulations on a beautiful trailer, and you amaze us with your work all the time. I mean, I know like a lot of people in my family also might be thinking, okay, fine, I'm seeing your work in front of me, so thank you for that. But my question would be, you've done almost all sorts of roles now. There was action that was left, you've done that. You've done comedy for sure. You've done a serious movie like Article 15, which is one of the best for me that I liked as a movie. What else do you plan to experiment with? Or also if you plan to come on OTT next, when do we get to see that? I think OTT is a great revolution, and if I have to just go overboard with experimentation, OTT is the place. But yeah, it depends on the opportunities you get. And this is, I'm quite lucky and fortunate that I've gotten opportunities not just to portray different characters, but to showcase different subjects on the celluloid. And this is something which is again very unique, Dreamworld 2. And it is full mass entertainer. This is the first time I think this is going to be the massiest of all, because this is the time where there's a complete schism between theatrical and OTT. The palette of this film is full theatrical. It's a family mass entertainer. Normally मेरी जो subject based फिल्में होती हैं, multiplex फिल्में होती हैं, ड्रीम गर्ल पहली वाली was the only film जो छोटे शहरों तक गई थी। तो ये आई थिंक छोटे से छोटे शहरों से लेके बड़े से बड़े शहर तक जाएगी। इसका टोन वैसा है फिल्म का, so I'm really excited about it. Sir, in the last few years, I mean, do you think the scenario of filmmaking has been changed and the business of films has been changed? Your Andhadhun, I mean, not a big budget film, did so much profit, and big budget films with big stars are not, doing well on the box office. So, do you think talented actors and the content kind of thing, which good content, are valued more right now? I think it will always be content. Of course, this is the generation, this is the era where content will always shine. And I'm glad that medium budget films are doing well now. It was not the case last year, but इस साल scenario काफी change हो गया है, which is like a welcome change. And ये हमेशा एक wave आती रहेगी. And I'm glad last 3 films have done well at the box office. So I'm really excited about Dreamworld 2. Hello, can I get Hi, Pooja here from Awesome TV. Hi, Pooja. पूजा Don't steal my thunder. Congratulations to the entire team. The trailer looks simply awesome, and thank you, मेरा नाम इतना ट्रेंड में लाने के लिए. My question is to Ananya. So, आयुष्मान खुराना as a female क्या कुछ struggles face कर रहे थे off screen, और आपने क्या कुछ inputs दिए? मैंने कुछ इनपुट्स नहीं दिए, मैंने एक्चुअली उनसे बहुत सीखा. जो अदायगी उन्होंने लाई है, जो लटक मटक गाने में, आई वाज फुली लाइक हाउ आर यू मूविंग लाइक दैट. आई वाज ट्राइंग टू कॉपी हिम. तो मैंने कोई टिप्स नहीं दिए. ही इज एक्चुअली गिवन मी टिप्स on how to have more other. Yeah. Can we get that? Thanks, Ananya. Hello. Yeah, how much of a challenge was it,
Ma'am? portraying a girl in front of you. So what were the challenges when you were I mean, it wasn't a challenge for me. I think the challenge was for him. I was just enjoying. I was making the most of it. And मुझे actually आयुष्मान के साथ shoot करने में बहुत मजा आया, but I think पूजा के साथ ज़्यादा मजा आया. हेलो राज, मेरा सवाल राज से एक्चुअली ये राइटिंग इस फिल्म की जो लग रही है बहुत कमाल की लग रही है. ट्रेलर देख के बहुत मजा आया. तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप बहुत कम फिल्में कर रहे हैं, कोई वजह है? ऑडियंस चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में डायरेक्ट करें और लिखें, क्योंकि इससे पहले जो फिल्म आई थी वो भी कमाल की राइटिंग देखने को मिली थी और लोगों ने बहुत पसंद किया. एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा फिल्में नहीं करना चाहता, लेकिन कॉमेडी एक ऐसी विधा है उसको आपको समय देना पड़ता है थोड़ा सा, और यूज एंड थ्रो चीज़ें हो जाती हैं. एक बार आपने सुन लिया तो जोक खत्म हो जाता है. और बीच में क्योंकि पैंडेमिक में 2 साल सबके खराब हुए, तो अब तक तो ये फिल्म आ जाती कब की, ये 2021 की में ही आ जाती. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग अब आ रहे हैं क्योंकि सब लोग ने बड़ा सफ़र किया उस दौरान. तो राइटिंग तो चली रही है, मैं लिखना भी बहुत कुछ चाहता हूँ, और भी फिल्में आ रही हैं अभी आप नेक्स्ट ईयर देखेंगे तो भी. और मैं और एकता हम लोग अभी प्लान करके बैठे कुछ और हंसाने का आप लोगों को, क्योंकि जितने साल एकता ने मतलब लोगों को रुलाया है, मतलब सीरियस में उतने साल लोगों को हंसाया कम से कम. तो 25 साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट. मेरा काम शुरू हम 5 से हुआ था, जस्ट बाय द वे. वही मतलब हम 5 वो तो डीएनए में तो है ना कहीं ना कहीं. तो अब वो मैं चाहता हूँ कि हम और एक के अगले 25 साल 50 सालों तक आप लोग हंसाएं. डेफिनेटली मैं लिख रहा हूँ, और आने वाले 1-2 साल में आपको और अच्छी बेहतरीन फिल्में मिलेंगी. राज से ज्यादा फनी इंसान मैं लाइफ में नहीं देखा. He is the funniest man to write. I still remember seeing one audition, और वो lady जो elderly थी, we needed an elderly person for the role. And we were like, okay, but you know, is she too old? Will this role be too challenging for her? राज को इनकी एज क्या हो सकती है? इसे बस भगवान से 2-3 दिन छोटी. राजपाल सर, भैया जी, हेलो, दिस इज मोबाइल पोस्ट. आपकी फिल्म हंगामा को आज 20 साल पूरे हो गए हैं, और आपकी जर्नी को, क्या बात है, और आपकी जर्नी को लगभग 25 साल पूरे हो गए हैं. मैंने आपकी जितनी भी फिल्में हॉल में देखी हैं, हीरो और हीरोइन से ज्यादा हूटिंग और तालियां आपकी एंट्री पे बची हैं. तो जलवा है. तो सवाल ये है कि जब आप अपने आप को बड़े पर्दे पे देखते हैं, आपकी फिल्म देखते हैं, तो ऐसा क्या है आपकी परफॉर्मेंस में, आपके कैरेक्टर्स में जो हमेशा ऑडियंस के साथ कनेक्ट करता है? कुछ नहीं ब्रदर, पहले तो ये इतनी डिसिप्लिन में मैंने फर्स्ट टाइम कोई 30-25 साल में बहुत सारे पोस्टर और प्रोमो रिलीज देखे, लेकिन थैंक यू एकता यार, इतनी डिसिप्लिन मैंने फर्स्ट टाइम. और ये जितना भी जो भी ऑर्गेनाइज किया है फैंटास्टिक. बहुत तालियां बजनी चाहिए. क्या बात है, क्या बात है. आधार कार्ड हेलो ब्रदर, क्या है ना, हम लोग मैं एनएसडी कर रहा था, तो हमारे बैच में एक बार नहीं 10 बार ऐसी बात हुई कि ये टाइप कास्ट हो गया, ये हो गया, ये अब इसके पास रोल नहीं, अब एक ही जैसा करता है. तो जो हम लोग इंस्टीट्यूट के दौरान मजाक उड़ाते थे अपने सीनियर एक्टर्स का, जिनमें वैरायटी नहीं मिलती, तो वी आर लकीएस्ट आई थिंक. आयुष्मान या बहुत सारे, मैं अपने को भी उस कैटेगरी में रखता हूँ कि साल में 1-2 लीड कोई न कोई मिलती है जो मीनिंगफुल होती है, सोसाइटी के लिए कोई मीनिंग, मनोरंजन दोनों मिलता है. और कोई ऐसी फिल्म जिसमें एक्टर जो है वो कैरेक्टर ग्रुप में आइटम बन के कोई पेशगी करता है. तो मुझे बहुत अच्छा कि हंगामा जैसे रोल भी करने का सौभाग्य मिल रहा है, और मेन लीड जैसे रोल भी जिनको प्रॉपर अभी तो एक तरफ ड्रीम गर्ल 2 रिलीज हो रही हो, उसका भी हिस्सा हूँ सौभाग्य से, और एक तरफ कोई दूसरी फिल्म बनी उसमें मुख्य भूमिका. तो आई थिंक कोशिश करता रहता हूँ कि ब्रदर कुछ भी हो, कैसा भी कैरेक्टर हो, एंट्री हो तो फिर ताली हो. क्या बात, क्या बात. Hello, Ayushman. This is Siddharth Sayed from filmfestival.com here. Hello sir. My question to you is, when you were in your early 20s, what was your concept of a dream girl?
What were the attributes or the qualities that you would look for in a woman at that point in time? और अपनी better half का जिक्र मत कीजिएगा। क्यों आप सर मेरा घर पे ऐसे बात बेटर हाफ का जिक्र करना पड़ेगा, लेकिन वही है, सबसे पहले आई थिंक एक बच्चे के लिए ड्रीम गर्ल उसकी माँ होती है, उसके बाद उसकी माशूका होती है। लेकिन एक तरीके से ये होता है कि आप हमेशा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप नॉर्मली पाते नहीं हैं, चाहे वो काइंडनेस हो, लॉयल्टी हो या टैलेंट हो किसी तरह का। काइंडनेस सबसे ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जैसे किसी खूबसूरत लड़की को पता ही ना हो कि वो खूबसूरत है, तो वो ये मर्दों के लिए भी सेम ही है। ये पर्टिकुलरली आप ड्रीम गर्ल ड्रीम बॉय के लिए सेम क्वालिटीज़ होती हैं मुझे लगता है। एक हया जैसे होती है, वो शर्म जो होती है ना, इट्स वेरी अट्रैक्टिव आई थिंक, वो चाहे लड़कों में हो या लड़कियों में हो। सो आई थिंक इट्स ह्यूमिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। Ananya ji, thank you. Thank you, Ananya sir. ji, in today's time, the age matter is talked much about. I mean, the male actress being them and male actor being a little older. Do you think age subject is something we should be talked about, or it's practical, impractical in personal life or professional life? I don't think ये आज का इशू है. I think it's always been there, this age gap. But I think जो भी roles के लिए suited है, as long, you know, I don't think people should think about the age when they're watching a film. If they're thinking of the age, then it's a problem. I think अगर दो लोग character में suit होते हैं, then it's all right. Yeah. फिर मेलपा चिनो यंग बने हुए हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? It doesn't matter. Hello, hi, this is Manisha from iwmbuzz.com. My question is for Ayushmann. I want to know कि आपकी wife और आपके children का क्या reaction था जब उन्होंने आपका first look देखा as Pooja? Wait, your dog didn't recognize My you. dog didn't recognize me. That was the funniest. Seriously, मैंने कहा तुम्हें तो smell करके आ जाना चाहिए, but she didn't recognize me. That's because you put the girl perfume. I used to put a girl perfume to just बहुत मैं कैरेक्टर में और बहुत मेथड में चला गया था। मैं अपनी मैनेजर या अपनी मेकअप आर्टिस्ट का परफ्यूम लगा लेता था अपने ऊपर, ताकि फीलिंग वैसी आए। So yeah, it was hard to believe for them. I think they once came on the set and they couldn't believe it. It was me. So मैंने बोला कि मेरी कंपटीशन अनन्या पांडे है मेरे सामने ही, मुझे उतना ही खूबसूरत बनना है फिल्म के अंदर, तो कोशिश वही रही है मेरी, and I think they're very proud of it. Thank you. खड़े रहे भाई, बैठ के पूछ। हेलो ठोकर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ नया है क्या? आपको का वो हाँ मैं देख पा रहा हूँ आपको। सर इधर आ जाओ ना। ए अनिल जी, हाँ बताइए। हाय आयुष्मान, हाय। पहले तो मैं कंफ्यूज हूँ कि इतनी बॉडी बनाने के बाद भी आपका जो लेडीज वाला फिगर है, करीना कपूर खान की जो मेरा नाम मेरी है या डैड सो था गाना, उसकी तरह लग रहा है। सर आप चेहरे पे ध्यान दीजिए, आप बॉडी पे कम ध्यान दीजिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हमारे फिल्म के अंदर कास्ट होते और यही बात हमारी फिल्म के अंदर करते तो राज जी इनको अलग तरीके से पेश करते आपको। हाँ आप फिगर ये कि आपने पहले मेल वाला वर्जन किया या फीमेल वाला वर्जन किया? मैंने दोनों साथ में किया है। मेल वाले वर्जन में भी इतना ज़्यादा मसल नहीं है, बहुत लीन, और मेरा मेटाबॉलिज्म काफ़ी फास्ट है। अगर मैं बस कार्डियो करूं और थोड़े कार्ब्स छोड़ दूं तो मैं अपने आप ही पतला हो जाता हूं। एंड ऑफ कोर्स मसल गेन मैंने चाहे चंडीगढ़ के राज की पहली फिल्मों में किया है, बट आई थिंक इस फिल्म के लिए मुझे लूज़ करना बहुत ज़रूरी था। एंड जैसे मैंने बोला पहले फिल्म के अंदर ही बोला कि असेंबल्ड भी हूँ, तो काफ़ी मदद मिली। VFX भी होता है, ऐसी बात नहीं। और ये सबने एकता ने भी बोला, आयुष्मान ने भी बोला, ये पहला राइटर ऐसा है जिंदगी को देख के मुझे डर आ जाता है। आफ्टर नीरज बोरा, आई एम टेलिंग यू, वन लाइनर में नीरज भाई के बाद में जो हंगामा की बात की, सालू मंदिर का घंटा, एक एक डायलॉग, आई थिंक एकता इज वेरी राइट कि ये आदमी की एंट्री होती है, आप कैरेक्टर नहीं सुन पाते हो, आप कैरेक्टर के लिए ऐस कर देते हो, क्योंकि कोई बात घुसते ही ऐसी बोलेगा तो बाद में बोलता है यार इसकी टाइमिंग इतनी अच्छी है भाई, बाद में भले ही क्या इस फिल्म में होगा अभी मुझे नहीं पता रोल किसका क्या बना है, लेकिन सेट पे जो है राज शांडिल के साथ में बहुत कम लोगों के साथ मजा लिया जो राइटिंग में मास्टर होते हैं। आई थिंक मैं अगर 20 लोगों का मुझे डायलॉग बोलने का मौका मिला, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, लेकिन अगर 2-5 चुनने हो
तो नीरज भाई के बाद में आई थिंक राज शांडिल डिजर्विंग दैट पोस्ट, मतलब इतनी कमाल की टाइमिंग है वन लाइनर की। हाय आयुष्मान, हाय अभिषेक, दोनों से आपसे सवाल है। बहुत ऐसी कम फिल्में होती हैं जो बहुत ज्यादा पसंद आती है दर्शकों को। आपकी एक फिल्म की एक्शन हीरो जो मुझे बहुत पसंद आई और सभी क्रिटिक्स ने भी बहुत तारीफ की। अभिषेक, आपकी फिल्म थी भेड़िया, मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन भेड़िया ने अंडर परफॉर्म किया और एक्शन हीरो भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। मैं जानना चाहता हूँ कि एक्टर के पर्सपेक्टिव से कि जब अच्छी फिल्में होती हैं और नहीं चलती हैं तो वो कैसे आप लोग कोप अप करते हो, कितना बुरा लगता है, क्या आप कुछ बताना चाहें? आई थिंक शुरू में जो पहला हफ्ता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम मीडिया में पढ़ते हैं कि कितना कमाया है, ये जो पहला हफ्ता वाला जो एक बहुत बड़ा क्यूरियोसिटी रहती है सबके अंदर कि कितना पैसा कमा रही है, वो हफ्ता जब आप टिप देखते रहते हो तो आपको बुरा लगता है क्योंकि आप कुछ एक्सपेक्टेशंस शायद अपने लिए बनाए रखते हो। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर आपने अच्छी फिल्म की है और आपको वो बात अपने आप आई थिंक कुछ महीनों बाद समझ में आ जाती है कि फिल्म अच्छी थी, बुरी थी, और मतलब या पैसे शायद इस रीजन से नहीं कमा पाए, क्योंकि आई थिंक यही मैं धीरे धीरे यही सीख रहा हूँ कि बॉक्स ऑफिस का कुछ पता है नहीं। इट कैन लाइक वर्क समटाइम्स फॉर वेरी एवरेज फिल्म्स आल्सो एंड समटाइम्स यू नो वेरी गुड फिल्म्स। पहले ऐसा हुआ है कि जिन्होंने पैसे नहीं कमाए, बट फिल्म अच्छी है कि नहीं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम उसमें फिल्म के प्रोसेस में मजे ले पाए हैं और फिल्म देखने के बाद ये लगा है कि नहीं यार एक कायदे का काम किया है, तो आई थिंक सेटिस्फैक्शन तब भी रहती है। जैसे मीडिया को लेकर मैं आज भी बहुत प्राउड फील करता हूँ जैसे ही फिल्म बनी, और अभी भी जितना प्यार मिलता है आफ्टर OTT रिलीज, आई थिंक वो कई सारी मेरी सक्सेसफुल काम में जिनसे उतना प्यार नहीं मिल पाया। सो या आई एम टोटली प्राउड ऑफ इट। आयुष्मान, कुछ एक्शन हीरो के बारे में बोलना चाहेंगे? मतलब बहुत ज्यादा उसे तारीफ मिली थी और वो फिल्म चलनी चाहिए थी। आई थिंक वक्त की बात है। कभी कभी आप यूनिवर्स आपके मतलब इट्स लाइक जिक्सॉ पजल, आपको पजल में फिट होना जरूरी है। दैट टाइमिंग वाज नॉट राइट मे बी। एट द सेम टाइम मुझे लगता है वो एक्शन हीरो है, यहाँ पर सारे जो मेरे इर्द गिर्द मर्द हैं फिल्म के अंदर वो एक्शन की फिराक में पूजा के साथ, तो इसमें भी आपको अलग तरह का एक्शन की एस्पिरेशन का आपको देखने को मिलेगा। सो आई थिंक ड्रीम गर्ल 2 में सब कुछ है, लेकिन हाँ बुरा आपको वो ठीक है। आई थिंक प्रोसेस, जैसे इसने बोला, अभिषेक ने बोला कि प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज एन एक्टर आप प्रोसेस को समझते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, एंड लॉन्जेविटी लॉन्ग टर्म में उस फिल्म को उसका ड्यू मिल जाता है। जैसे लम्हे एक टाइम पर थी तो वो नहीं चली थी, लेकिन सबकी फेवरेट फिल्म बन गई थी लम्हे। तो आई थिंक वो हमेशा आपकी फेवरेट फिल्म होती है जो नहीं चल पाती, पर फिर भी लोग उसको प्यार मिल जाता है लॉन्जेविटी। Ayushman, hi guys. First of all, congratulations on the trailer. Amazing trailer. Wishing you guys all the very best. My name is Monty. I'm from New York, ITV Gold. And wonderful guys. First of all, a round of applause to you guys. Great work. And I guess everybody should give a round of applause to this wonderful team sitting on the इतने देसी ट्रेलर में ऐसी अंग्रेजी आवाज बहुत अजीब सा, मतलब कॉम्बिनेशन मिला है। I can speak अगर आप चाहें तो मैं हिंदी भी बोल लूँगा मेरे भाई। But I would like to first of all congratulate you. Doing a costume film, as you know, have to change. That takes a lot. You know, female का costume पहनना और उसके बाद एक अदाकारी करना, and to get comedy. Hats off to you, brother. That's a very challenging thing that you have picked up, and thank you. You know, I appreciate that you're spreading humor, spreading the genre of comedy, the most difficult genre, and I believe Raj will agree with me that लोगों को हंसाना, रुलाने से भी बहुत मुश्किल काम होता है भाई. And I'm sure Ekta will agree. You know, she did Hum Paanch, made us laugh years ago. So I'm gonna play a little Bermuda Triangle, and I'm gonna make sure that I get an answer from everybody. Imagine that you guys get 30 seconds. आपको 30 सेकंड मिलते हैं सर, और 30 सेकंड में आपको इस फिल्म की सबसे खूबी बतानी है जो पिछले ड्रीम गर्ल 1 में नहीं थी। तो राजपाल सर से आपसे शुरू करेंगे कि सर क्या, क्यों आए, क्यों देखे फिल्म? 30 सेकंड, क्या बात है? पूजा की वजह से नहीं, पूजा तो थी, पूजा तो ड्रीम गर्ल 1 में भी थी, बट 30 सेकंड में आई थिंक ये राजपाल यादव इस फिल्म के अंदर है, ये सबसे बड़ी खूबी ये भी है। I know, time is a constant, it doesn't stop anybody. इनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जी। ये स्क्रीन पे आते हैं लोग खुश हो जाते हैं। ये ऐसे यूनिक एक्टर है। छोटा डॉन, हम लाइनें याद करते हैं, कोशिश करते हैं, लड़के से लड़की बन जाते हैं, इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट
He has to be there. And उनका हर shot अलग है. I don't know how he does it. Like his improvisation, like all my back shots में सिर्फ हंस रही हूँ. I couldn't keep a straight face around. बहुत मुश्किल बहुत है. ज्यादा मुश्किल है क्योंकि कभी कभार ऐसी चीजें ये धंधा पानी बंद फिर करवाएंगे, ये धंधा पानी बंद करवाएंगे। बहुत मुश्किल है। आप समझ नहीं पाते हो कि हंसी कैसे रोके इनके साथ, बहुत मुश्किल होता है। तो कमिंग टू यू राज सर, ऐसी इस फिल्म में क्या खूबी जो फर्स्ट पार्ट में नहीं थी? सुनील भाई थोड़ा नीचे कर लोगे तो इस पार्ट में एक्चुअली फिल्म में 8 अंतरे यूज किए हैं, गानों में अंतरे और 20 संतरे यूज किए हैं। 20 व्यूअर, मैं आपसे सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा, the Oscar goes to you. Very healthy humor, very healthy humor. The Oscar for the best comedy goes to you. एक्चुअली क्या है, पहली वाली फिल्म में हमेशा हम ऑडियो सुनते थे पूजा का, अभी हम वीडियो लेके आए, यानी कि सामने पूजा दिख रही है। ये इट्स अ बिग पार्ट। और एक व्यक्ति विशेष को जो लड़का बनता हमने देखा हुआ, वो अच्छा लड़की बन के आए, तो Abhishek, the same question to you. What is something unique in this film which is not in the first part? क्या कर रहा है यार? ये नीचे भाई, अरे तांबे काय करतो यार? खाली बस ना तांबे। Thank you so much, ladies and gentlemen. But one last question. टेम्परामेंट ऑल्सो, तो इस फिल्म के लिए आपका कितना और किस तरह से इनपुट रहा? मैंने राज को फोन किया, राज ने स्क्रिप्ट लिखी, मैंने पैसे लगा दिए। क्या बात। मेरा फेवरेट डायलॉग फिल्म का विजय राज जी का एक डायलॉग है जो बहुत लोगों पे आई वांट टू से, तो वो फ्लॉप पिक्चर है जिसको मैंने इंटरवल के बाद देखा है। इट इज माय फेवरेट डायलॉग। All right. Thank you so much, ladies and gentlemen, for your wonderful questions. राज, व्हाट इज योर फेवरेट डायलॉग इन द फिल्म? खुली बोतल के ढक्कन। सुनील भाई थोड़ा सुनील अच्छे सारे लगते हैं मुझे, लेकिन मेरा फेवरेट डायलॉग है जो मनोज जोशी जी ने बोला है। जब मनोज जोशी जी इनको शर्तें रखने जाते हैं घर पे और कहते हैं कि बैंक में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिमका होना चाहिए, तो इनका कहना होता है कि भाई 6 महीने में मैं कहाँ से लेके आऊँगा ये चीज़ें। तो मनोज जोशी जी बोलते हैं कि भाई ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं। तो अनुज जी बोलते हैं तो हम भगवान ढूंढ लेते हैं। तो मनोज जोशी बोलते हैं जितनी उम्र आपकी है ना, इस वक्त भगवान आपको ढूंढ रहे होंगे। That's my favorite dialogue.